آپ آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیا کوئی شخص وہاں جا کر واپس آیا ہے؟ کیا آخرت کی زندگی آپ کا خواب تو نہیں ہے کیونکہ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن فیصلہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہاں ملین کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، ہر ایک کا فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جسے آپ آخرت کہتے ہیں، کیا یہ دوسرا جنم ہے؟ آپ آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیا کوئی شخص وہاں جا کر واپس آیا ہے؟ کیا کوئی شخص وہاں جا کر واپس آیا ہے؟ سچ کہوں تو ہاں، ایسے لوگ ہیں جو وہاں گئے اور واپس آئے۔ معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور واپس آئے، لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کسی نے اسے باضابطہ خود دیکھا ہے؟ کیا کسی نے خود دیکھا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ سب فزیکلی دیکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ ذہن کو آنکھوں دیکھے حال تک محدود کرنا ہے۔ اس بحث کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ میں سنی سنائی پر یقین نہیں رکھتا، تاہم انسان بہت سی چیزوں پر بنا دیکھے یقین رکھتا ہے۔ ہم اپنے ذہن کو آنکھوں دیکھے تک کیوں محدود رکھیں؟ ہم ایسی بات کیوں کہیں کہ آپ کسی چیز پر اس وقت تک یقین مت کریں جب تک اسے دیکھ نہ لیں؟ چلیں اس طرح سوچیں، سمجھے کہ پہاڑ کے پیچھے آگ جل رہی ہے۔ ہم آگ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ہم دھواں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دھواں وہیں سے اٹھا ہے جہاں آگ لگتی ہے۔ کیا ہم نے پرسنلی آگ کو دیکھا؟ کیا یہ ایسی بات ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں؟ نہیں، ہم نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دھوئیں کا اٹھنا ہی آگ جلنے کا ثبوت ہے اور ہمارا ذہن فوراً نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ چلیں سوچیں، اگر میں پوچھوں کہ آپ کبھی امریکہ گئے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ امریکہ نہیں گئے ہوں گے، لیکن ہر کسی کو یقین ہے کہ امریکہ موجود ہے۔ ایک منٹ، آپ کو اس کی موجودگی کا یقین کیوں ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مجھے اس بارے میں بتایا گیا۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ امریکہ نامی براعظم موجود ہے۔ دوسرے لوگوں سے ملنے والے بہت زیادہ اور قابل بھروسہ ڈیٹا کی وجہ سے ایک بندر ریشنلی اور لوجیکلی جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایسی جگہ موجود ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہم ویڈیوز اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان ویڈیوز کا جینون ہونا بھی یقینی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی چیز کو ذاتی طور پر دیکھے بغیر بھی صرف ریزن یوز کر کے اس کا یقین کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے صحیح ہونے پر ہم کسی بھی چیز کی موجودگی کو مان لیتے ہیں۔ بالکل اس مثال کی طرح ہم آخرت پر بھی لوجیکلی اور ریزنیبلی اس انفارمیشن کی وجہ سے یقین رکھتے ہیں جو 1,24,000 نبیوں نے ہم تک پہنچائیں۔ ہم قرآن مجید میں دی گئی معلومات سے اچھی طرح واقف ہیں، تو جیسا کہ ہم اپنی ریزن سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے، کسی قسم کا پروف؟ ہم اس پر اس طرح غور کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آخرت کے بارے میں 4 مختلف سورسز سے مختلف چھوٹے موٹے شواہد موجود ہیں۔ یہ 4 مختلف سورسز کون سے ہیں؟ 1 یونیورس نامی کتاب ہے جو ہمیں آخرت کا پتہ دیتی ہے۔ 2 قرآن مجید ہے جو ہمیں آخرت کا بتاتا ہے۔ 3 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے بھی ہمیں آخرت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ 4 انسان کی نیچر اور اس کا ضمیر بھی آخرت کا پتہ دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ہر دلیل آخرت کو ثابت کرنے کے ساتھ قرآن مجید کی صداقت بھی ثابت کرتی ہے۔ وہ ہزاروں دلیلیں جو ہم قرآن مجید کے لیے دیتے ہیں ساتھ ہی آخرت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ ہم آخرت کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کس مثال سے؟ کچھ اس طرح سے، ایک ایسی ماں کے بارے میں سوچیں جس کا بچہ آگ میں جلنے والا ہے۔ وہ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے فوراً دوڑتی ہے۔ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے بعد وہ اپنے بچے کو 10 منزلہ بلڈنگ میں لے جاتی ہے۔ پہلی منزل پر اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھتی ہے، پھر وہ اپنے بچے کو دوسری منزل پر لے جا کر اس کی ضروریات کو دیکھتی ہے۔ وہ بچے کو تیسری منزل پر لے جاتی ہے۔ تیسری منزل میں بچے کے لیے بہت سی خوشیاں ہیں، وہ بچے کی چھوٹی موٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اس 10 منزلہ بلڈنگ میں ہر منزل پر وہ اپنے بچے کی مختلف ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ کیا ہو اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ اپنے بچے کو 10ویں منزل پر لے جائے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو اوپر سے نیچے پھینک دے؟ کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے؟ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ کیوں؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو بلڈنگ سے نیچے ہی پھینکنا ہے، 1 تو آپ نے اپنے بچے کو آگ سے کیوں بچایا؟ 2 آپ نے ایسی 10 منزلہ بلڈنگ کیوں بنائی جہاں بچے کے لیے ہر سہولت موجود تھی؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، حالانکہ میں ماں کی شفقت کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ بالکل اسی مثال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لائے، اس نے ہمیں خالی پن کی آگ یا اندھیرے کی گہرائی میں نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہم اس دنیا کو اس 10 منزلہ بلڈنگ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں ہر جگہ وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ہماری صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہر قسم کے ذائقے بنائے، مثلا اس نے ایک ایسی چیز پیدا کی جسے ماں کا پیار کہتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں وجود بخشا اور ہمیں سب کچھ عنایت کیا، بالکل اس ماں کی طرح جس نے اپنے بچے کو بلڈنگ سے پھینک دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمیں خالی پن کی آگ میں پھینک دیں گے یا گہرے اندھیروں میں چھوڑ دیں گے جب ہم مر جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اب ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں نہیں لے کے جائے گا، اگر وہ ہمیں گہرے اندھیروں میں چھوڑ دے گا، 1 تو اس نے ہمیں کیوں زندہ کیا؟
दो, और जिंदगी की नेमत देने के बाद उसने हमें क्यों ये सारी चीजें बख्शी और हमारी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा। लिहाजा हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी तोहफे और नेमतें बख्शी हैं, इससे साफ जाहिर है कि आखिरत मौजूद है। तो अगर कोई आखिरत का इनकार करना चाहता है तो उसे इस कायनात और इसमें मौजूद तमाम चीजों का लाजमी इनकार करना चाहिए। क्या आखिरत की जिंदगी आपका ख्वाब तो नहीं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं? हम यहाँ ख्वाबों की बात नहीं कर रहे, लिहाजा मैं ख्वाब देखूं या ना, मैं इसे हकीकत समझूं या नहीं, मसला ये नहीं है। मसला सबूत का है। हम सबूत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सबूत हर जगह मौजूद है। कुछ ऐसा फर्ज करें, तसव्वुर करें कि एक बंदा मीमार सिनान के दौर में रहता था। कोई उसके दोस्त को कहता है मीमार सिनान एक बिल्डिंग बनाएगा, और उसका दोस्त कहता है क्या पता ये वैसी हो जिसका ख्वाब तुम देखते हो। ये मुमकिन नहीं है। आप इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है। ये तो मुमकिन नहीं। क्या इस बात में कोई सेंस है? इस बात में कोई सेंस नहीं। क्यों? उसका पहले से किया गया काम ही इस बात का सबूत है कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों को पहले ही साबित कर चुका है। इस मिसाल की तरह अल्लाह ताला ने पहले ही हमें जिंदगी बख्शी है और ये कायनात तख्लीक की, और अभी भी वो बगैर रुके मखलूक पैदा कर रहा है। तो वो अल्लाह ताला जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वो आखिरत में वही सब करने के काबिल क्यों ना होगा? अल्लाह ताला जिसने इतनी सारी चीजें पैदा की, जिसने एक ही दफा में इतनी सारी चीजें तख्लीक कर दी, तो यकीनन वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। मेरा ख्याल सिर्फ ये था कि मेमार सिनान की मिसाल में हम इसके पिछले काम को मद्देनजर रखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि आइंदा वो क्या करने जा रहा है। अल्लाह ताला ने हमें अभी तक आखिरत की झलकी नहीं दिखाई, तो हम उसको इस मिसाल से कैसे मिला सकते हैं? मिसाल ये साबित करने के लिए दी है कि अल्लाह ताला ये कर सकते हैं या नहीं, तो मिसाल इसलिए थी। और जहाँ तक मीमार सिनान की बात है, हमने कहा कि एक काम जो वो हजारों दफा कर चुका है, बिल्डिंग्स बना चुका है, उसके लिए नई बिल्डिंग बनाना नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो माहिर है। फिलहाल मसला आखिरत की मौजूदगी का है। यहाँ हम एक ऐसी जात की बात कर रहे हैं जो कादिर मुतलक है, उसमें कोई कमजोरी मौजूद नहीं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। हम एक ऐसी जात के बारे में बात कर रहे हैं जो हर काम आसानी से कर सकती है। वो जात जिसने इस दुनिया जैसी जगह बनाई, जाहिर है वही जात आखिरत जैसी जगह भी बना सकती है। चलें इस बात को यूं समझें, क्या कोई भी काम पहली दफा करना आसान होता है या दूसरी दफा? जाहिर है दूसरी दफा में ज्यादा आसान होता है। क्यों? एक काम जो पहले आप कर चुके हैं, वही काम आप दोबारा ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो कादिर मुतलक है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो सब कुछ आसानी से कर सकता है। तो हमें मान लेना चाहिए कि अगर वो इस दुनिया को पहली दफा बना सकता है, तो दूसरी दफा आखिरत को बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह ताला जिसने एक पानी के कतरे से मिलियन लोगों को पैदा किया, तो उसके लिए हमें मरने के बाद दोबारा इन्हीं हड्डियों से पैदा करना मुश्किल क्यों होगा? अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है। आपके जवाबात में जब हम आखिरत के सबूतों पर बात कर रहे थे, तो आपने इंसानी फितरत के सबूत की बात की। आपने कहा इंसान बजाते खुद एक सबूत है। क्या आप उसकी वजाहत करेंगे? ये इसी सवाल से रिलेटेड है जो अभी पूछा गया। आपको पता है कि कहा गया आप आखिरत को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आपकी अपनी ख्वाहिश है। यही असल में इंसानी फितरत का सबूत है। कैसे? मसलन भूख का एहसास। इंसानी फितरत में भूख का एहसास बजाते खुद खुराक की मौजूदगी का सबूत है। इसी तरह इंसान की आखिरत की ख्वाहिश भी मुस्तकिल तौर पर उसका रुझान एक अब्दी जिंदगी की ख्वाहिश और इन्फिनिटी की ख्वाहिश, ये सब ऐसा ही है जैसे खुराक वाली मिसाल है। तो ये ख्वाहिशात भी आखिरत की मौजूदगी का मुंह बोलता सबूत है। हमारी जरूरत ही आखिरत की मौजूदगी का सबूत है। मसलन क्या आप ऐसी जगह को याद करेंगे जिसे आप ना जानते हो या वहाँ कभी ना गए हो? आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस जगह को हम नहीं जानते, हमारे अंदर उसके लिए तड़प नहीं होती। जब आप इस बारे में गौर करें, हमारे अंदर जन्नत की तड़प है, इन्फिनिटी का एहसास है। जब हम जन्नत की बात करते हैं तो हमारे अंदर इसकी ख्वाहिश है और हम वहां जाने के लिए बेताब हैं। एक मिनट, अगर हम ऐसी जगह को याद नहीं करते जहां हम कभी ना गए हो, तो हमारे अंदर कुदरती तौर पर जन्नत और अब्दियत की ख्वाहिश ये किस बात को जाहिर करता है? ये जन्नत और आखिरत की मौजूदगी की निशानदही करता है। ये इंसानी फितरत का सबूत है। हमारी फितरत अब्दियत और जन्नत से वाकिफ है और ये फितरत ही हमें इस तरफ ले जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैदा खुराक की मौजूदगी को जाहिर करता है। हमारी अब्दियत की ख्वाहिश और जरूरत आखिरत और जन्नत का सबूत है। ये सब उसको जाहिर करता है। क्या हम आखिरत में अपने जिस्मों के साथ होंगे या रूह के साथ? जब हम कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिरत में रूह और जिस्म दोनों दोबारा जिंदा होंगे। हो सकता है कि जिस्म का दोबारा जिंदा होना लोगों की समझ में ना आता हो। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक कमांडर का तसव्वुर करें। उस कमांडर की फौजें उसके आसपास रेस्ट कर रही हैं। वो उन सबको इकट्ठा करने के लिए सिर्फ रीग्रुप के अल्फाज कहेगा। ठीक, ये उसके लिए बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि ये फौजी आर्मी में उस कमांडर के अंडर काम करते हैं। इसी तरह हमारे जिस्मों के तमाम एटम्स, इस कायनात के तमाम एटम्स इन्हीं फौजियों की तरह अल्लाह ताला जैसे कमांडर के अंडर हैं। जब लोग मरते हैं तो उनके जिस्म दफनाए जाते हैं। अब हमारे जिस्म में मौजूद वो फौजी, दूसरे अल्फाज में एटम्स, उन फौजियों की तरह हैं जो मरने के बाद रेस्ट कर रही हैं।
तो अल्लाह ताला को उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ रीग्रुप कहने की जरूरत है। इस ऑर्डर के साथ ही वो अपने तमाम फौजियों यानी एटम्स को दोबारा तरतीब दे सकता है, बिल्कुल उस कमांडर की तरह जो आसानी से अपनी फौज को इकट्ठा कर लेता है। अल्लाह ताला रेस्ट करने वाले इन फौजियों या एटम्स को रीग्रुप का हुक्म देगा। इसके साथ ही एक कमांड में वो उन सबको तरतीब देकर जिंदा कर सकता है। लिहाजा जिस्म के दोबारा जिंदा होने में कोई शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस कमांडर की मिसाल की तरह। जिसे आप आखिरत कहते हैं, क्या ये दूसरा जन्म है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये जिंदगी टेस्ट है और आखिरत उसका रिजल्ट है, तो क्या एक टेस्ट का इनाम या रिजल्ट ये हो सकता है कि दोबारा टेस्ट लिया जाए? जाहिर है नहीं। इस जिंदगी का मकसद आखिरत तक पहुंचना है। ये आखिरत के लिए टेस्ट है और इस टेस्ट के आखिर में अच्छे लोगों को इनाम मिलेगा जबकि जालिमों को सजा मिलेगी। इस बात की कोई सेंस नहीं बनती कि सबको इस दुनिया में दोबारा टेस्टिंग ग्राउंड में भेजा जाए। इसके अलावा जब हम अपनी रूहों को देखें तो वो अब्दी है। वो एक अब्दी फितरत वाली रूह के लिए उसको इस दुनिया में दोबारा भेजने की सेंस नहीं बनती एक महदूद जगह पर, क्योंकि अगर रूह समंदर है तो दुनिया की मिसाल एक कप की तरह है। मतलब ये कि हमारी रूहें इस कप के अंदर नहीं समा सकती। तो जब हमें इनाम मिलता है इस दुनिया में कुछ अच्छा करने पर हमें कोई इनाम मिलेगा तो यकीनन वो एक अब्दी जगह में होगा। तसव्वुर करें एक बहुत अच्छा बंदा दोबारा जन्म लेता है और इस दुनिया में एक बहुत मालदार आदमी के रूप में आता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अमीर आदमी बीमार नहीं होते हैं? क्या अमीरों को अब्दियत की ख्वाहिश नहीं होती है? मैं ये कहूँगा ये एक तजाद है, ये लॉजिकल नहीं है। आप ऐसे देखें, एक जालिम ने 10 मिलियन लोगों को कत्ल किया या 20 मिलियन लोगों को कत्ल किया, उसकी सजा उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए जितना बड़ा उसने जुर्म किया। अगर आप उसको इस दुनिया में दोबारा भेज देंगे तो आप उसको क्या बदतरीन सजा दे सकते हैं? उस शख्स का सोचें जो खतरनाक हालात में है, वो सब नहीं पा सकता जिसका वो मुस्तहिक है। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने 10 मिलियन लोगों को कत्ल किया है। तो एक ऐसी जगह जरूरी है जहां जालिम को उसके जुल्म की भरपूर सजा मिले और ऐसी जगह जहां अच्छे लोगों को उनके कामों का इनाम मिल सके। तो इस सूरत में दूसरे जन्म का आइडिया नाकाबिले तसव्वुर और गैर मंतकी है और इसमें सैकड़ों तजादात मौजूद हैं। क़यामत में फैसला करने में कितना अरसा लगेगा? वहाँ मिलियन की तादाद में लोग मौजूद होंगे। अगर हर एक को अलग अलग जज किया जाएगा तो कितना अरसा लगेगा? मालूमात के मुताबिक क़यामत के दिन जजमेंट का अरसा बहुत लंबा होगा। ये अरसा 1000 से 50,000 साल तक का बताया जाता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि टाइम का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है। मसलन मैथ्स के एक लेसन को लें, उस बंदे के लिए लेसन बहुत बड़ा होगा जिसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। बाज़ औक़ात उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैथ्स की क्लास में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन वो जिसे मैथ्स पसंद है उसके लिए लेसन छोटा होता है। और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस की मिसाल लें, ये क्लासेस बहुत से लोगों के लिए बहुत जल्दी गुजर जाती हैं। बाज़ औक़ात तो 2 लेसन को यकजा करके एक ब्लॉक लेसन बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि ये एक लेसन की बजाय कम वक्त लेगा। लिहाजा टाइम का कॉन्सेप्ट, टाइम का परसेप्शन किसी भी शख्स या उसके हालात के हिसाब से बदलता रहता है। हमें इस बारे में इस तरह गौर करने की जरूरत है। अगर हम क़यामत में उस बंदे के तौर पर आते हैं जिसे अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान नसीब हो, तो हमें टाइम के कॉन्सेप्ट पर गौर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में अगर हमें अल्लाह की रजा हासिल है, टाइम हमारे लिए ज्यादा तेजी से गुजरेगा। अगर हम इस दुनिया और इस टेस्ट पर फोकस करेंगे, हमें यहाँ क्या करने की जरूरत है? अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की जरूरत है। एक बंदा जिसने अल्लाह ताला की रजा हासिल कर ली तो उसके लिए क़यामत के दिन टाइम का कॉन्सेप्ट कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ना हम इस दुनिया और अपने टेस्ट पर ज्यादा फोकस करें। अगर हम अल्लाह को राजी कर लें, हम टाइम की रिलेटिविटी के बारे में सोचेंगे और अल्लाह की रजा का भी, तो हम अपनी जजमेंट आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आप कहते हैं कि आखिरत, जन्नत और जहन्नम अब्दी हैं, तो क्या हम आखिरत में हमेशा रहेंगे और अब्दी इंसान बन जाएंगे? मेरे ख्याल से अब्दी तो सिर्फ अल्लाह ताला है। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ एक चीज है, ये कंडीशन कि आखिरत अब्दी है और हम अब्दियत के लिए पैदा हुए, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, इसलिए हम इसके लिए अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट हैं। इस फैक्ट के साथ कि अल्लाह ताला हमें अब्दियत देता है और हमें हमेशा रहने की इजाजत देता है और सिर्फ इसी सूरत में हम अब्दी तौर पर रह सकते हैं। अब्दी होना जन्नत या जहन्नुम की खासियतों में नहीं है। जन्नत या जहन्नुम तभी अब्दी होंगे जब अल्लाह ताला उनको अब्दी रखेगा। इसी तरह हम भी हमेशा रहेंगे। इस बारे में इस तरह सोचें, एक आईने को लें जो सूरज की शॉ को रिफ्लेक्ट करता है। इस आईने में रिफ्लेक्शन का सोर्स सूरज है। इसी तरह अगर हम जन्नत, जहन्नुम और आखिरत की अब्दियत का सोचें, बिल्कुल इस आईने की तरह जिसकी रिफ्लेक्शन सूरज पर डिपेंड करती है, उनकी अब्दियत भी इस रिफ्लेक्शन की तरह अल्लाह ताला पर डिपेंड करती है। वही उनको पैदा करने वाला है और वही उनको अब्दियत बख्शने वाला है। एक और मिसाल एक दरख्त की छांव की है। छांव के लिए दरख्त का होना जरूरी है। ये छांव दरख्त की वजह से है। इसी तरह आखिरत की मौजूदगी भी जन्नत और जहन्नुम की मौजूदगी अल्लाह ताला की वजह से है। ये मौजूद है क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी उनके मौजूद होने में है। ये अल्लाह ताला के नामों और उनकी सिफात का अक्स है। अगर क़यामत ही कायम करनी थी तो दुनिया को क्यों बनाया गया? क्या ये सब वेस्ट नहीं है? ये वेस्ट नहीं है क्योंकि टीचर इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए चौक का इस्तेमाल करता है। जब आप कहते हैं
वो मुझे पढ़ाने के लिए चौक से लिखता है और फिर इसे मिटा देता है, तो क्या ये वेस्ट है? नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि चौक का मकसद इंफॉर्मेशन देना था। अल्लाह ताला ने ये दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर बनाई और उसने इस दुनिया को बहुत से इश्यूज का मतलब समझाने के लिए बनाया। अब इसको इसी चौक की मिसाल से समझे तो फिर आखिरत की मौजूदगी और इस दुनिया का इख्तिताम ये सब वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये उसको मायने देने के मकसद के लिए है। मजीद ये कि अल्लाह ताला यूनिवर्स और इसके कंटेंट को फिर से ट्रांसफॉर्म करेगा, लिहाजा अल्लाह ताला इस यूनिवर्स को दोबारा नए अंदाज में बनाएगा। इस यूनिवर्स को आखिरत का कलीदी हिस्सा समझ सकते हैं। इसी यूनिवर्स से अल्लाह ताला दूसरी यूनिवर्स बनाएगा, इसलिए यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं है। ठीक है, ये वेस्ट नहीं है, तो क़यामत की बुनियादी वजह क्या है? हम कह सकते हैं कि इसकी कई वजूहात हैं। मसलन एक बादशाह को लें जिसने एग्जीबिशन का बंदोबस्त किया और सब लोगों को बुलाया। वो लोगों को बुलाता है और ये चाहता है कि लोग एग्जीबिशन में मौजूद आइटम्स का मफहूम समझें। वो उनको ट्रीट भी देता है, कुछ खाने पीने की अशिया के ऑफर देता है। अगर लोग एग्जीबिशन का असल मफहूम समझने के बजाय सिर्फ खाने पीने की अशिया पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? एग्जीबिशन को बंद करने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जीबिशन का बुनियादी मकसद लोगों को इसमें मौजूद आइटम्स का मकसद समझाना था। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स कुछ मफहूम समझाने के लिए बनाई है। अगर यहाँ आने वाले लोग उसका मफहूम नहीं समझते, दूसरे अल्फाज में वो कुरान को छोड़ देते हैं और अल्लाह के नाम और सिफात का मुतालिया नहीं करते, अल्लाह ताला क्या करेगा? वो इस एग्जीबिशन को बंद करके एक और बनाएगा। ये तो एक बुनियादी वजह है और भी कई वजूहात हैं। एक और मिसाल ये है, एक घर का तस्वुर करें जो 10 साल बाद बहुत कोशिशों से तामीर हुआ। अब जबकि घर मुकम्मल होने वाला है तो आप छत नहीं बनाते। अगर आप खुली छत बारिश के लिए छोड़ देते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी, है ना? अगर 10 की लागत होगी तो यकीनन छत भी मुकम्मल हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि काम मुकम्मल हो गया। तो इस दुनिया को बनाने की सारी लागत, जैसा कि लोगों के पढ़ने और मफहूम समझने पर एक टेस्टिंग साइट बिल्ड करना, अच्छे और बुरे लोगों को अलग करना, इन तमाम अखराजात के बाद एक छत ना बनाना, तो ये अक्लमंदी नहीं है कि एक टेस्ट को आखिरत ना बनाकर ना मुकम्मल रखा जाए। लिहाजा ये इसी तरह मुकम्मल होगा जैसे दुनिया की छत मुकम्मल होगी। आखिरत की जिंदगी आएगी, ये एक और वजह है। हम ऐसी दर्जनों वजूहात गिन सकते हैं। आपके जवाबात का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने ही सवालात हैं। मैंने जितने भी जवाबात देने की कोशिश की ये सब कुरान की तफसीर रसाले नूर कलेक्शन नंबर 10th वर्ड से इंस्पायर होकर दिए हैं। अगर मेरे बहन भाई मजीद जानना चाहते हैं तो उन्हें ये तफसीर पढ़नी चाहिए। अगर वो इन सवालात के जवाबात देना चाहते हैं तो हम उन्हें रिसाला नूर की कलेक्शन पढ़ने का मशवरा देंगे। क्या रिसाला नूर की कलेक्शन को पढ़ने का कोई तरीका है? हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है टूवर्ड्स ELA। हमारे बहन भाई वहाँ से हम तक रसाई हासिल कर सकते हैं और वहाँ उन्हें ऐसे सवालात के जवाब भी मिलेंगे जैसे मैं रसाले नूर को आसानी से कैसे समझ सकता हूँ। हमारा एक ऑनलाइन इस्लामिक प्रोग्राम टूवर्ड्स इटर्नल लाइफ एकेडमी के नाम से है। हमारे बहन भाई वहाँ से भी हम तक पहुँच सकते हैं। अगर वो इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वो रसाले नूर पढ़कर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।